Assalamualaikum. Pakistan Studies, Class 10th, Lesson number 5 from Chapter number 2, Foreign Relations of Pakistan. Today, our main topic is OIC and Pakistan's relations with OIC countries like Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Malaysia, United Arab Emirates, Central Asian states. Questions which are we cover in this topic. Question number 7, 8, 9 and 10. Question number 7 is narrate the Pakistan's role in the Organization of Islamic Conference. Question number 8, explain the relations between Pakistan and Turkey. Question number 9, discuss Pakistan's relations with Egypt, Malaysia and United Arab Emirates. Question number 10, comprehend Pakistan's relations with the Central Asian countries. Okay students, today we are going to start our topic number 4, which is OIC and relations of Pakistan with OIC members. Introduction of Organization of Islamic Cooperation. The Organization of Islamic Cooperation, formerly the Organization of the Islamic Conference, is an international organization founded in 1969, consisting of 57 member states with a collective population of over 1.8 billion as of 2015, with 53 countries being Muslims majority countries. The organization was established upon a decision of the historical summit which took place in Rabat, Kingdom of Morocco on 12th Rajab 1389 Hijri or 25th September 1969, following the criminal erosion of Al-Aqsa Mosque in occupied Jerusalem. And Pakistan is always willing for the unity of the Islamic world, and it has played an important role for creating harmony and cooperation among them. पाकिस्तान जो है उसने हमेशा से मुस्लिम से रिलेटेड कोई भी मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट किया, सपोर्ट किया उसको। इवन के यूएनओ की तरफ से भी जो भी मूवमेंट या जो भी चीज़ जो है उसको पेश किया जाता है या एज अ बिल के तौर पे पेश किया जाता है तो पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करता है। बेसिकली ओआईसी को बनाने का मकसद ये था कि मुस्लिम्स जो हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करना, जितनी भी मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करना, और इस काम के लिए जिस चीज़ ने मजबूर किया वो वाक़या था मस्जिद अक्सा का, जिसे 1969 के अंदर जो है फ़लस्तीन के अंदर जो है वो शहीद कर दिया गया था। सब जो स्टेट्स हैं वो रबात के अंदर इकट्ठी हुई तो पाकिस्तान ने सजेस्ट किया कि मुस्लिम्स जो हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो उनके जो तमाम मसाइल हैं उनको देखे, उनकी जो मैटर्स हैं उनको देखे, उनके ऊपर बात करें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेड ऑफिस जो है वो जद्दा के अंदर मौजूद है, और पाकिस्तान ने इसका मैनिफेस्टो बनाने में, इसका आइन बनाने में अहम रोल अदा किया। Pakistan relations with Saudi Arabia. Our next point is Pakistan's relations with Saudi Arabia. First one is beginning of political relations. As you know, Saudi Arabia is a spiritual center of the all Muslims because of Haramain Sharif. और इसी वजह से पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात जो है, रिलेशनशिप जो है वो भी बहुत अच्छे हैं। In 1946, the Quaid-e-Azam sent a delegation during the General Assembly session in 1946. और जो सऊदी फैसल थे, सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह फैसल, उन्होंने भी उस जो डेलीगेशन था उसको एक्सेप्ट किया। Saudi Arabia has also provided extensive religious and educational aid to the Pakistan.
इसके अलावा बहुत से मसाजिद और जो मदारिस हैं वो बनाने में भी पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया है। प्लस जो हमारी फैसल मॉस्क है इन इस्लामाबाद, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, द मेजर पाकिस्तानी सिटी ऑफ Lyallpur was also renamed Faisalabad in honor of King Faisal in 1977. Saudi Arabia also provided a financial aid for teaching of Arabic language, promotion of zakat system and establishment of International Islamic University. यानी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाने में भी जो सऊदी अरेबिया उसने अहम रोल अदा किया। इसके अलावा सऊदी अरब जो है उसने हमेशा पाक इंडिया वॉर्स के अंदर भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट किया। उसके अलावा फाइनेंशियली पाकिस्तान को जो है सपोर्ट प्रोवाइड की, उसके साथ साथ ऑयल जो है उसको प्रोवाइड किया ताकि वो वॉर के अंदर जो है वो सक्सेसफुल हो सके। वॉर को जो है उसको फाइनेंशियली जो है सपोर्ट की वॉर के अंदर, ताकि उसे फाइनेंशियल पाकिस्तान को किसी किस्म के जो मसाइल हैं वो दरपेश ना हो। उसके साथ साथ रोल इन अफगान रशियन वॉर, सऊदी अरेबिया ने स्ट्रांगली जो है कंडेम किया रशियन अटैक को अफगानिस्तान के अंदर 1979 के अंदर। Saudi Arabia not only protested but also provided moral, political and financial support to Pakistan and Afghanistan during the war. उसके अलावा जेनवा कॉर्ड जो है उसके अंदर भी सऊदी अरेबिया जो उसने अहम रोल अदा किया। Pakistan maintains close military ties with Saudi Arabia, providing extensive support, arms, and training for the military of Saudi Arabia. और बोथ नेशंस जो उन्होंने हाई लेवल पे डेलीगेशंस जो साइंटिस्ट किए हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है सऊदी अरेबिया की उसने बहुत से जो स्टडीज़ के अंदर एक्सपर्ट लोग थे स्पेशली न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर, उनको जो है पाकिस्तान भिजवाया। उसके साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी इकोनॉमिक कमीशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया 1998 के अंदर जद्दा के अंदर। और इस कमीशन के तहत जो है तकरीबन 150 के करीब जो है प्लान्स जो है वो बनाए गए और उनके ऊपर वर्किंग जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से स्टार्ट की गई और उसकी फंडेड उसको जो फंडेड किया गया था उन प्रोग्राम्स को, उन प्लान्स को भी जो है वो सऊदी गवर्नमेंट जो है उसने किया। उसके अलावा वेलफेयर विजिट्स एंड मीटिंग्स आ जाती हैं। आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, किंग साउद bin Abdul Aziz visited Pakistan in 1954. During this visit, he gave generous financial aid for the rehabilitation of the refugees. अब जो पाकिस्तान को महाजरीन को सेटल डाउन करने का इशू था उसमें जो है सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। उसके अलावा जो वहाँ के किंग हैं साद बिन अब्दुल अजीज़, उन्होंने विजिट किया और पाकिस्तान को फाइनेंशियली जो है सपोर्ट दी, एड दी। उसके साथ शाह फैसल जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया 1966 के अंदर और उन्होंने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान जो है वो हमारा सेकंड होमलैंड है। इसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज मुशर्रफ जो उन्होंने सऊदी अरेबिया को विजिट किया इन 1999 में और प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे 2003 में गए। इसी तरह जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर आते गए वो सऊदी अरब विजिट करते रहे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे जहाँ पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वहाँ हमारे रिलीजियस रिलेशंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। Our next topic is Pakistan relations with Turkey. जैसा कि आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये है कि मुस्लिम स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम करना। Our first point is establishment of relationship टर्की और पाकिस्तान के दरमियान कब जो है वो कायम हुआ। तो टर्की has recognized Pakistan immediately after its birth and extended complete support to it on its stand on कश्मीर issue। इसके साथ ही जैसे ही पाकिस्तान बना टर्की की तरफ से उसे फुल सपोर्ट मिली और कश्मीर इशू पे स्पेशली जो है टर्की ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया। रोल ऑफ टर्की इन पाक इंडिया वॉर अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। टर्की सप्लाइड पाकिस्तान विद आर्म एंड ammunitions in 1965 Indo-Pak War. When Turkish president visited Pakistan in 1966, Pakistan thanked him for his help in the war.
उसके साथ कॉपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुर्की का अगर रोल जो है उसको देखा जाए तो पाकिस्तान एंड तुर्की ऑर्गेनाइज रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट in July 1964 with mutual understanding. This organization was reactivated in 1985 and is now called Economic Cooperation Organization. और इस कॉरपोरेशन के अब जो है वो 10 मेंबर्स हैं। फाइनेंशियली कॉरपोरेशन जो है पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो रही हैं उसमें भी तुर्की जो है उसने अहम रोल अदा किया है। उसके अलावा बहुत सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं वो मिल के पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनको चला रही हैं। उसके साथ साथ मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो भी पाकिस्तान की तुर्की के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और द लीडर्स आर विजिटिंग ईच अदर्स कंट्री। और जैसे जैसे लीडर्स हमारे आते हैं मुल्क के अंदर वो जो है विजिट करते हैं तुर्की को। इसके साथ साथ मिनिस्ट्रियल जो कमीशन है पाकिस्तान और तुर्की का उनके जो है दरमियान जो है 2002 के अंदर बहुत से एग्रीमेंट जो है वो साइन हुए जिसमें स्पेशली 4 एग्रीमेंट्स हैं। और पाकिस्तानी रिलेशंस जो हैं तुर्की के साथ इस तरह और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं। तुर्की इज ट्राइंग टू एक्सटेंड इट्स बिजनेस विद पाकिस्तान और इसके साथ साथ 2009 के अंदर म्यूचुअल ट्रेड जो है उसके ऊपर $782 मिलियन जो है वो एक्सपेंड किए गए हैं और फिर उसको बढ़ा के जो है उनको $5 बिलियन जो है और उसके अंदर जो है वो डाल दिए गए और ताकि उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सके। प्लस पाकिस्तान एस्टैब्लिश मेट्रो बस प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ टर्की और जो मेट्रो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर चलाया गया है वो भी टर्की की हेल्प से जो है वो चलाया गया है। Our next relationship is Pakistan relations with Libya. Pakistan's relations with Libya. Libya is so important and all rich state of North Africa and उसने 1951 के अंदर जो है आज़ादी जो है इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल की। उसके साथ साथ शाह अदरीस kingship was established. Pakistan profoundly advocate Libya's freedom struggle which brought the people of both countries closer to each other. अब हम अगर बात करें कि हमारे रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग कहाँ से हुए तो उसमें पाक इंडिया वॉर्स जो है उन्होंने जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा किया। Pakistan has deep friendly ties with Libya. Libya not only extended diplomatic support of Pakistan in Indo-Pak war in 1971 बल्कि उसके साथ साथ उसने मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है एड जो है वो भी पाकिस्तान को पाक इंडिया वॉर में दी। उसके अलावा अगर एरा ऑफ कर्नल कज़ाफ़ी को देखें तो कज़ाफ़ी जो है वो पाकिस्तान आए और उन्होंने जो डेलीगेशन था सुमिट कॉन्फ्रेंस का उसको हेड किया। उसके साथ साथ जो OIC थी लाहौर के अंदर 1974 में उसकी जो कॉन्फ्रेंस रखी गई उसको भी एड्रेस किया पाकिस्तान के अंदर। कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है उनके नाम से जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उनको रिस्पेक्ट के तौर पर जो है लाहौर के अंदर जो स्टेडियम है उसका नाम जो है उनके नाम के ऊपर रखा गया। Since then, Pakistan and Libya have been enjoying cordial relations. अगर मिनिस्ट्रियल कमीशन की बात करें तो लीबिया और पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्रियल कमीशन जो है उसको 1974 के अंदर जो हुआ सेटअप किया गया और दोनों कंट्रीज के दरमियान बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स जो है वो कायम किए गए। इसके अलावा बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स हैं वो जो है दोनों स्टेट्स के दरमियान जो है वो तय पाए। उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज के अंदर इस्लामिक सेंटर्स जो है वो कायम किए गए। इसके साथ साथ पाक लिबियन कंपनी जो है वो उसका सेटअप किया गया और दोनों स्टेट्स के दरमियान जो मिनिस्ट्रियल कमीशन है उसको जो है लीबिया के अंदर सेटल डाउन किया गया। Pakistan's relations with Egypt. Egypt, an important country of the North Africa continent. Pakistan has developed friendly relations with Egypt.
अब ब्रॉडली रिलेशन जो है इस्लामिक कंट्रीज के साथ कायम करना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, इसीलिए उसने इजिप्ट जो है पाकिस्तान ने इजिप्ट के साथ अच्छे रिलेशंस कायम किए। पाकिस्तान not only provided military help to Egypt but in Egypt, Israel war in 1973 extended full support at diplomatic level. सिर्फ वॉर जो थी इसराइल के साथ इजिप्ट की मिस्र की, उसके अंदर सिर्फ उसने डिप्लोमेटिकली लेवल पे जो है हेल्प नहीं की, बल्कि मिलिट्री सपोर्ट भी जो है इजिप्ट को प्रोवाइड की। उसके अलावा कश्मीर इशू के ऊपर इजिप्ट जो है उसने बड़ा नेगेटिव सा एटीट्यूड रखा, उसने यूएनओ के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया वोटिंग के लिए। उसके साथ साथ स्वेज कैनाल इशू जो था उसको प्रेसिडेंट अयूब खान जो है उन्होंने यूएनओ के अंदर जो उन्होंने स्पीच के दौरान जो बात की स्वेज कैनाल के ऊपर, उसको क्लियर किया कि हम इजिप्ट के साथ हैं। और उसके साथ साथ इजिप्ट की जो ओआईसी के अंदर वापसी है उसको भी सपोर्ट किया, ताकि इजिप्ट जो है मिस्र जो है वो दोबारा से जो है ओआईसी का मेंबर बन सके। पाकिस्तान रिलेशंस विद मलेशिया। पाकिस्तान हैज़ गुड रिलेशंस विद इस्लामिक कंट्री मलेशिया, और मलेशिया जो है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक स्पेशल पोजीशन जो है वो रखती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मलेशिया के साथ फाइनेंशियली और ट्रेड के अंदर जो है ट्रेड की फील्ड के अंदर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के रिलेशनशिप्स हैं। प्लस इसके साथ दोनों स्टेट्स के दरमियान कोऑपरेशन चल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। प्लस और बहुत सी फील्ड्स जो हैं दोनों स्टेट्स जो है मिलके उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, जिससे ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान के मलेशिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। पाकिस्तान रिलेशंस विद यूएई। United Arab Emirates also provided financial aid to Pakistan in every field, and in many projects have been completed due to itself. जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी बहुत से लोग जो हैं यूएई के अंदर जो है दुबई के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, और बहुत से जो एग्रीमेंट्स हैं दोनों स्टेट्स के दरमियान जो है वो तय हुए हुए हैं, जिसके अंदर जो वर्किंग फील्ड्स हैं उनके अंदर भी यूएई जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए हिस्टोरिकली और इस्लामिक और फाइनेंशियल रिलेशंस भी हमारे यूएई के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। Pakistan relations with Central Asian states. Central Asia is a region which stretches from the Caspian Sea in the west to China and Mongolia in the east, and the Afghanistan and Iran in the south to Russia in the north. The region consists of the former Soviet republics of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Central Asia is an extremely large region of varied geography, including high passes and mountains. They all became independent after the disintegration of Soviet Union in 1991. These Central Asian countries are landlocked but rich in natural resources. Pakistan has religious, cultural, and economic relations with these countries. Pakistan is the only country that provides them the nearest sea route and transport facilities. और पाकिस्तान ने जो स्टेट्स हैं ये जो स्टेट्स हैं जो आज़ाद हुई सोवियत यूनियन से, इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम किए क्योंकि ये स्टेट्स मिनरल से माला माल हैं। तो पाकिस्तान ने इनको जो ट्रेड के लिए जो है रास्ता और सी रूट जो है वो प्रोवाइड किया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं ताकि वो अपनी ट्रेड को जो है कंटिन्यू रख सकें। इसके साथ साथ इन ट्रेड्स के साथ पाकिस्तान के बहुत से एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर ट्रेड के अंदर बहुत से एग्रीमेंट्स जो है इन स्टेट्स के साथ जो है पाकिस्तान तय कर चुका है। इसी वजह से इन स्टेट्स के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप। पाकिस्तान रिलेशंस विद अजरबैजान। पाकिस्तान established relations with Azerbaijan in 1992, और इसके साथ ही पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उससे रिलेटेड एग्रीमेंट जो है तय हुआ। प्लस मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम अजरबैजान आर स्टडिंग इन पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज और एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। प्लस अजरबैजान जो है वो उसके पास ऑयल और गैस जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो मौजूद है।
और जो अज़रबैजान है वो खुद मुख्तार है ऑयल और गैस के मामले में, इसीलिए पाकिस्तान ने जो है एक्सप्लोर करने के लिए ऑयल और गैस को 2001 के अंदर एक एग्रीमेंट जो है अज़रबैजान के साथ तय किया। प्लस दोनों जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी ट्रूप्स जो है उसको आपस में एक्सचेंज करने के मामला जो हैं उनके ऊपर भी एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए हैं। Our next relationship is Pak relations with Uzbekistan. नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान रिलेशंस विद उज़्बेकिस्तान। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं पाकिस्तान के नवाज शरीफ एंड बेनजीर भुट्टो जो है उन्होंने उज़्बेकिस्तान को विजिट किया। उसके बाद जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर्स आते गए और प्रेसिडेंट्स आते गए वो जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको विजिट करते रहे। प्लस जो मौसूलियम है इमाम बुखारी का वो मौजूद है बुखारा के अंदर उज़्बेकिस्तान के अंदर। और मुस्लिम्स की उनके लिए जो है इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इसीलिए इसी सिलसिले में मियां नवाज शरीफ डोनेटेड $50,000 फॉर रिपेयर ऑफ इमाम बुखारी मौसूलियम at his first visit. The president of this country has also visited Pakistan in 1992. प्लस इसके अलावा उज़्बेकिस्तान जो है उसकी एयरवेज जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया कराची के अंदर। चूँकि उज़्बेकिस्तान जो है रिच उसके पास मिनरल्स मौजूद हैं जैसे कि ऑयल गैस और कोल। तो पाकिस्तान और जो उज़्बेकिस्तान है उसके दरमियान गैस पाइपलाइन बिछाने का भी एक एग्रीमेंट जो है वो तय पाया ताकि पाकिस्तान के अंदर जो गैस के इश्यूज हैं गैस की प्रॉब्लम उसको कम किया जा सके। पाकिस्तान's relations with Tajikistan. Pakistan has very good relations with Tajikistan. Tajikistan is very close to Pakistan. Its capital, Dushanbe, is located at a distance of 500 kilometers from Islamabad. जो प्रेसिडेंट है ताजिकिस्तान के उन्होंने 1994 के अंदर पाकिस्तान को विजिट किया। इसके अलावा दोनों स्टेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट जो है वो तय हुआ। और पाकिस्तान ने जो एक मुआहदा है वो साइन किया जिसके अंदर ये तय पाया कि जो ताजिकिस्तान है वो पाकिस्तान को हाइड्रो पावर जो है वो प्रोवाइड करेगा। पाकिस्तान रिलेशंस विद तुर्कमानिस्तान। पाकिस्तान के तुर्कमानिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमानिस्तान हैज आल्सो विजिटेड पाकिस्तान इन 1994 or many pacts have been signed between both countries for development in different fields. Like पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट करता है फूड आइटम तुर्कमानिस्तान को। प्लस इसके साथ साथ एक एग्रीमेंट जो है 1996 के अंदर तय पाया कि तुर्कमानिस्तान से कोयटा तक जो है एक गैस पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी। सेंट्रल एशिया की जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब जो हैं वो मिनरल्स जो हैं नेचुरल मिनरल्स जो हैं उनसे माला माल है जिसमें सबसे अहम गैस ऑयल वगैरह है। इसीलिए पाकिस्तान के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इन कंट्रीज़ के साथ क्योंकि ऑयल एंड गैस की फील्ड से रिलेटेड बहुत से जो मुआहदे हैं बहुत से एग्रीमेंट्स जो हैं इन स्टेट्स के साथ पाकिस्तान के तय हो चुके हैं। पाकिस्तान रिलेशंस विद काजाकिस्तान। Pakistan has very strong relationship with Kazakhstan. This is the biggest country among the Central Asian countries. Mia Mohammad Nawaz Sharif visited Kazakhstan in 1990 and signed different agreements for flourishing of trade. फिर उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान को 1992 के अंदर। Pakistan has signed many agreements with Kazakhstan for providing cement plant and for setting up different industries there. अब दोनों जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान इंडस्ट्री और ट्रेड से रिलेटेड जो है बहुत से एग्रीमेंट्स जो है वो साइन हुए हैं, इसलिए दोनों स्टेट्स के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान रिलेशंस विद किर्गिस्तान। Pakistan has very strong relation with Kyrgyzstan because there are very vast reserves of uranium in Kyrgyzstan, and as you know Pakistan is an atomic power which has a deep interest in furthering ties with this country.
अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो जो है उन्होंने किर्गिस्तान को सबसे पहला विजिट किया और उसके साथ जो है बहुत से एग्रीमेंट्स जो हैं वो तय किए जो कि ट्रेड की फील्ड से थे। और कोशिश ये की गई कि ट्रेड फील्ड्स जो हैं ट्रेडिंग फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी किर्गिस्तान को। और उसके साथ साथ बाय रोड जो है दोनों स्टेट्स के दरमियान जो है वो ट्रेडिंग होगी। Home task. Okay, students, today your home task is question number 7, 8, 9, and 10. Okay, students, I hope you understood all the questions very well. Learn all the questions, complete your home task on time. Thank you.